Now here we move ahead today with the hopefully the last part, that is the 10th part or the 10th video, or you can call it as a 10th lecture of your chapter 18. And before that, let me wish all of you personally once again Happy New Year, and God bless all of you and me too, and with good health, of course, and happiness. So let's move ahead. Now, we already had done this particular part in the previous lecture that's related to what our government has done to protect the consumer. Measures matlab what all things government has done to protect the consumer. So, three level पे courts है. वैसे the fourth one is the Supreme Court. Usually we take it as District Court, High Court, Supreme Court. But related to consumer, there are highest Supreme Court माना जाएगा. But before that, there are three tier court, that is under 1986 के Consumer Protection Act के अंदर Central Consumer Protection Council was set up. फिर similarly State Consumer Forum was set up. तो कंट्री लेवल पे एक सेट किया गया, स्टेट लेवल पे सेट किया गया, और जो यहाँ पे लॉज फ्रेम होते हैं स्टेट और कंट्री लेवल पे कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड if he is cheated, what all action should be taken by the government, by the court. And National Consumer Dispute Commission has created a structure of three-tier court and framed rules, that is norms for the action of consumer forum or commission. और consumer forum या organization या commission को भी कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, उनको क्या एक्शन लेने हैं टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस कंट्री लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन. डिस्प्यूट मतलब छोटे मोटे या बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा छोटे या मोटे या स्मॉल और बिग, जो डिस्प्यूट्स होते हैं और चीटिंग होती है, फ्रॉड होते हैं, लड़ाइयाँ होती है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ट्रेडर या कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर. तो यहाँ पे कंट्री लेवल के कमीशन होते हैं, and that is the organization, and they have created this three-tier court. So we had done district forum. फोरम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 20 लाख तक की चीटिंग होती है तो लोग यहाँ पे जाके अपना केस फाइल करते हैं, एंड दे सपोर्ट द कंज्यूमर एंड हेल्प देम टू गेट बैक द कंपनसेशन. फिर एक है स्टेट फोरम, मतलब स्टेट लेवल पे भी तुम जाके केस फाइल कर सकते हो, लेकिन वहां पे 20 लाख तक की अगर चीटिंग हुई है तो हमारे साथ, यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ तक की चीटिंग हुई है, यू कैन गो टू द स्टेट कोर्ट. देन देयर इज नेशनल फोरम, मतलब कंट्री लेवल का भी एक ऐसा फोरम है जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा की कहीं पे अगर चीटिंग हुई है हमसे, आई टोल्ड यू रिलेटेड टू सम प्लॉट की खरीदी, या वहां पे तो 4-5 करोड़ तक के प्लॉट्स लोग खरीदते हैं, या बिग बंगलोज, या 1 करोड़ से ज्यादा का बड़ा फ्लैट, या anything it could be, where the consumer is cheated for more than 1 crore amount of product or service. तो वहां पे they can go to the national forum, right? Now we also saw consumer society, you can call it consumer commission, consumer organization, or consumer forum. Once again, this society works for what? To save the people from being exploited, और अगर exploit हो चुके हैं तो उनको जाके compensation दिलवाना, उनके तरफ से केस फाइल करवाना कोर्ट में, एंड these are all non commercial, they are all non political, ये voluntary organization है, फिर भी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट तो करती है, it is for the consumers protection. Now we come to PDS, जो हमने डिटेल में ऑलरेडी कर लिया था in this chapter itself, कि way to bring down the prices that have increased. तो प्राइसेस जो राइज होती हैं उसे हम, पहला था जैसे मॉनेटरी मेजर, फिर उसमें फिस्कल पॉलिसी थी, फिर आया था एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, फिर आया था पीडीएस. तो व्हाट इज पीडीएस? दैट वी आर डन ऑलरेडी अबाउट द बिग डैश शॉर्ट नोट आई टोल्ड यू. तो ये 4 लाइन 5 लाइन और वो वाली बड़ी शॉर्ट नोट ऐड करके you will have to write it for a 3 mark or 4 mark or whatsoever they ask for. Under public distribution system या ration shop या fair price shop, necessities, that is essential commodities of good quality, are provided at fixed rates but very low rate, subsidized rate, discounted rate,
बट इन फिक्स क्वांटिटी, कि एक फैमिली में रेशन कार्ड पे लिखा रहता है एक फैमिली में कितने लोग हैं, एज क्या है, लाइक मैन और वुमेन, गर्ल और बॉय, अकॉर्डिंगली क्वांटिटी फिक्स होती है उस फैमिली की, and these are provided at subsidized or discounted or less rate to the poor at regular interval, that is every month, from ration shop, or it is called fair price shop. Thus the poor consumer is saved from being exploited in the open market, that is from the private granary store, from where they have to purchase at high rate, and sometimes they are cheated by providing them of less weight or low quality product. So PDS controls corrupt practices of the trader. System certifying weights and measures and quality of goods. अब कभी मम्मी या मम्मी पापा दोनों जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, लाइक रिलेटेड टू ज्वेलरी, गोल्ड और समथिंग, इट कुड बी सिल्वर, तो यहाँ पे ज्यादा हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी दैट वी हैव टू सी कि यहाँ पे वेस्ट मेजर्स, प्योरिटी, सब कुछ होना चाहिए, नॉट ओनली अबाउट द गोल्ड बट वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द अदर प्रोडक्ट लाइक ऑयल, घी and medicines and many other things. So let's start. For health and safety of consumer, government has set up some legal institutes which perform the task of checking the quality, quantity, purity of produced goods and certifies them. हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करने, हमारी सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने एक लीगल इंस्टीट्यूट खड़ा किया है, सेटअप किया है, मेरे लीगल इंस्टीट्यूट्स, जिनका काम है कि जाके चेक करना क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी इन सब प्रोडक्ट्स की, और फिर उनको सर्टिफिकेट देना. अगर सर्टिफिकेट नहीं देते वो, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं सकेगा. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड ISI, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, लर्न इट. तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया थे 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू रेगुलेट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो ISI का मार्क हो तो ही वो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बिक सकता है. नाउ सिंस 1986 इज कॉल्ड BIS. तो 1986 के पहले और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद उसको नाम दिया गया था ISI, लेकिन 1986 के बाद उसी ISI को नाम दिया गया BIS. है तो सेम, सिर्फ ईयर याद रखना. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब स्टैंडर्ड. अब उन्होंने जो लॉस फ्रेम किए हैं कि ये स्टैंडर्ड, क्वालिटी, सब कुछ इस तरह से होना चाहिए. अगर ये सारे प्रोडक्ट के ओनर्स इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करते तो ये ISI या BIS मार्क नहीं मिलता, और अगर फॉलो करते तो उनको ISI मार्क अलाउ करते. फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक मार्क होता है. अब यहाँ पे जो देखा ये नॉन एडिबल प्रोडक्ट होंगे, लाइक वुड and any other non-edible it could be. But when we come to edible product like ghee, तेल, शक्कर, बहुत सारी चीजें हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो उनको एक मार्क का मार्क दिया जाता है, लेकिन पहले क्वालिटी चेक होती है. The agriculture product like forest product, horticulture, animal product are given the mark of egg mark. Is implemented, learn it, full learn करना है for 1 mark of MCQs, otherwise the whole has 2 mark of. So it is implemented in the Agricultural Product on Act 1937. This scheme is run by the DMI, Learned Directorate of Marketing and Intelligence, in the Ministry of Agriculture, Government of India, that grants permission to the traders to use egg mark. अब ये DMI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलाउ करेगी, ये परमिशन देगी ट्रेडर्स को कि आप एग मार्क यूज कर सकते हो या नहीं. So they give the permission, grant the permission to the traders to use egg mark. If the consumer has any doubt regarding the quality of marks, अगर हमें डाउट जाए एज अ कंज्यूमर इन द मार्केट कि भाई ये तो मार्क को दिया है एग मार्क, क्वालिटी में हमें शक जा रहा है, then we can go and contact the regional office of the BIS. अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी मिलता है BIS मार्क along with purity number, that is 916, learn it, which means quality and purity of gold is generated by certain parameters. Parameters मतलब कि तुम्हें पास अगर करना है तो गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पैरामीटर डाला है कि 35 के से कम हो तो फेल, 35 एंड अप
इज कॉल्ड पास. तो पासिंग मार्क एक पैरामीटर डाला है, एक लाइन ड्रॉ की है, दैट बिलो दिस लाइन, अगर एक लाइन है जैसे पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाओ तो इट इज कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन. एब्सोल्युटली पुअर पीपल एंड अबाउ, तो उसके अलग 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 डेफिनेशन होंगे. इस तरह से 916 मीन्स प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गोल इज जनरेटेड बाय सर्टेन पैरामीटर. मतलब थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे. अगर वो सक्सेस होते हैं उस रूल्स को फॉलो करने में, तो फिर उनको 916 और BIS का मार्क मिलेगा. दिस आर BIS मार्क. गोल्ड नंबर एग्जाम्पल 916. व्हाट इज 916? देखते ही तुम क्या डिपिक्ट करोगे, क्या जान लोगे कि ये 22 कैरेट गोल्ड है. हॉलमार्क ऐसे लिखा है, लोगो इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शोज द ईयर ऑफ हॉलमार्क. Example, J means jewelry manufactured in 2008. Now, FPO is food product order is used on jam, fruit juice, fruits, vegetables packed in tin, etc. फिर होगा BIS allows textile, chemical, insecticides, products of rubber, cement, electronic gadgets to use ISI mark. तो BIS allows ये सारे प्रोडक्ट को ISI मार्क हम दे सकते हैं. वुल मार्क इट इज गिवन टू वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस मार्क. राइट, जैसे यहाँ पे ये वुल मार्क, ये MPO, फिर ये FPO, ये है HACCP लोगो. अब MPO इज फॉर मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये मीट के लिए है. राइट, MPO लोगो and is given to meat, mutton and other products made from them. HACCP is hazard analysis and critical control point. It is given to processed food. ECO, that is ECO, is given to soap, detergent, paper, lubricating oil, packing material, color chemicals, power coating, battery, cosmetics, goods used in place of wood, leather, plastic product by ISI, presently called BIS after 1986 और 1947 और 1986 के बीच तक ये क्या बोलते थे हम उसे ISI. नाउ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल. हमारे यहीं के कई प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक रहे हैं, लेकिन उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. जैसे इंडिया की मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है तो एक मार्क होना चाहिए, ISI, BIS जॉब है आफ्टर 1986, फिर एग मार्क, और आगे हमने बहुत सारे लोगो देखे. तो क्वालिटी वो लोग जो लिखते हैं उस हिसाब से उस क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करें, प्योरिटी को मेंटेन करें, तो वो लोगो हमें मिलेगा एंड देन इट इज इजी फॉर अस टू गो एंड सेल इट इन द मार्केट. और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक रिलैक्सेशन फीलिंग आएगी व्हेन दे सी दैट ISI, BIS, FPO, MPO, whatever. तो उनको एक रिलैक्स फीलिंग होगी, यस दिस इज अ मार्क्ड प्रोडक्ट, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट, इट्स प्योर प्रोडक्ट. राइट, वैसे ISO इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें हमारा प्रोडक्ट बेचना है तो देयर आर स्टिल मोर रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड. लेट्स सी. Organization at the international level. Two organizations are working at the international level to maintain the standard of the product. ISO, International Standardization Organization. Its headquarters is at Geneva. It is established in 1947. Main function is to provide certification or certificate of standard, मतलब quality, purity, etc. का certificate देते हैं ये लोग according to international standard. हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्री के साथ एक प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा रहना है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमें क्रॉस करने होंगे, सेटिस्फाई करने होंगे, तब जाके ये सर्टिफिकेट मिलेगा. एग्जाम्पल, सीरीज ऑफ ISO 9000 इज गिवन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑफिसर इंस्टीट्यूशन हैविंग हाई क्वालिटी. तो ऐसे अलग अलग 9000, 9010, जैसे देयर आर मेनी स्कूल्स जिनको ऐसे ISO मार्क को मिलता है. नाउ व्हाट डज दैट मीन कि स्कूल को हम बेचने नहीं जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में. इंडियन स्कूल अहमदाबाद में एक दो ऐसे स्कूल हैं, लाइक it was once heard related to Saint Kabir that they had got this mark of ISO. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मेंटेन कर रहे हैं. सेम वे there was one shop, now is somewhere at जोधपुर क्रॉस रोड पे है वो. सिग्नल जैसे आए उसके पहले हमारी साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सारे बंगलो स्कीम है गोल्ड कॉइन के पहले. तो व्हेन वी गो फ्रॉम सत्यम मॉल टुवर्ड्स जोधपुर,
तो एग्जैक्टली वो सिग्नल के पहले देखो तो लेफ्ट में एक जरा फुटपाथ पे 3 ऐसे शोकेसेस लगाए गए हैं और एक बंगलो में वेरी मच फ्रॉम द रोड यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, क्योंकि फुटपाथ को टच करके उन्होंने 3 बड़े ऐसे शोकेस लगाए जहाँ पे कपड़ों की एडवर्टीजमेंट होती है एंड पुतलों के ऊपर यू नो लाइक मैनिक्विन के ऊपर उन्होंने कपड़े लगा के डाले, ऑल गर्ल्स ड्रेस एंड लेडीज ड्रेस एंड ऑल। तो वो पहले सत्यम मॉल में स्टार्ट हुआ था समवेयर 12-13 इयर्स बैक, और वहां पे ऐसे मार्को था आईएसओ वाला कुछ और नंबर उनको दिया गया था। इट मीन्स दैट दे हैव ऑब्टेन द थ्रू रजिस्ट्रेशन दैट आवर प्रोडक्ट इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो फिर उनको आईएसओ मिलता है। जैसे फर्नीचर के लिए जब हम बड़ी बड़ी लकड़ों की शीट लाते हैं घर पे, लाइक प्लाईवुड एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर द फर्नीचर, तो उसके ऊपर भी एक बड़ा सा मार्क होगा आईएसओ सम नंबर, विच मीन्स कि वो बेचते नहीं है मार्केट में, लेकिन वो हम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो आप खरीदोगे तो ये इंटरनेशनल लेवल का है, सो यू नीड नॉट वरी, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, तो उनको भी आईएसओ मिल जाएगा, राइट। Now, very important, CAC. This that is Codex Alimentarius and Commission. This organization was set up to certify edible product. अब ये Alimentarius, so it's bit tongue twister जैसा है, Codex Alimentarius, तो easy हो जाएगा Alimentarius, right? तो पहले आधा आधा बोलो, वैसे बोलने की जरूरत है भी नहीं, you have to put it down, तो स्पेलिंग परफेक्टली कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बोलना, ये बोलना कहीं ना कहीं शायद फ्यूचर में काम आ जाए, तो प्रोनाउंसिएशन तो हर एक की आनी ही चाहिए। सो लेट्स सी कॉडेक्स एलिमेट्रियस कमीशन, इसको डिवाइन करके सुनते रहना, पता चल जाएगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज यूज्ड टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट। अब आगे जो था आईएसओ नॉन एडिबल, जैसे स्कूल एंड फर्नीचर एंड ड्रेसेस एंड ऑल, या लकड़ा। सीएससी इज फॉर edible product जो हम खा सकते हैं। Once again, this is also an international organization or commission for food. In 1963, Food and Agricultural Organization is FAO and World Health Organization WHO established it. Its headquarters is located in Rome, capital of Italy. Learn it. Its main function is to develop food standard, guidelines, code of practice, कौन से rules follow करने हैं, कौन से rules को laws and all you have to practice for production and international trade in food product like milk product, meat, fish, etc. अब ये सारे प्रोडक्ट अगर मार्केट में हमें इंटरनेशनल लेवल पे बेचनी है तो आईएसओ के सारे फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हमें वो गाइड करते हैं, फिर कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन विल हैव टू प्रैक्टिस, विल हैव टू फॉलो for production also in our country, in the factory, and even in to maintain that level at the market level, at international level, when we trade it, when we export it. The job of work of contacting ISO is done by BIS in India. अब ISO में अगर कांटेक्ट करना है तो जॉब वर्क ऑफ कॉन्टेक्टिंग ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें कुछ कांटेक्ट करना है तो किसके थ्रू हम कर सकते हैं कांटेक्ट? BIS in India, while Director General of Health Services contacts the CAC. Now, who can complain? Who can file a complaint? So, yes, we are moving towards the last part of a chapter. So, yes, in the new year, you will say, hush, thank God, we have completed this so very lengthy chapter. तो फिर भी कहीं पे 1 घंटे का था, कहीं पे 50 मिनट्स का, कहीं पे 55, कहीं पे 35, कहीं पे 40 मिनट्स, ऐसे करते करते 10 वीडियोस बने। कहीं पे डिफिकल्ट पार्ट था तो मैंने 30-35 मिनट्स पे स्टॉप किया था, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गो थ्रू द स्मॉल पार्ट, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वी वेंट ऑन टिल 1 hour or 55 minutes, 50 minutes. So in total 10 videos, but maybe just in total maybe 8 hours. 8 घंटे का या 7 hours का ये जो लेक्चर बना हमारा विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड लॉट्स ऑफ इनपुट हमारी ओर से, तुम्हारी ओर से भी कई बच्चों ने, यस उनका भी इनपुट काफी रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, दे वॉच द वीडियो एंड आई वुड से वॉच इट अगेन thoroughly because you don't know when the exams will be, your board exams, but होगी तो सही, 1 महीना लेट या 1 महीना जल्दी हो जाए, we never know. So keep on
revising, and any doubt, feel free to call me. So let's move on to the last part, interesting part. Who can file a complaint? ये तो बहुत ही ध्यान रखना है तुम्हें, so that you can even guide your parents who don't know maybe about all these things. शायद उनकी पढ़ाई वो जब पढ़ते थे तब ये सारा नहीं आता होगा इंडिया करिकुलम, तो सिलेबस में. तो एटलीस्ट यू आर द वन हु विल स्टडी एंड एटलीस्ट यू कैन गाइड योर पेरेंट्स कहीं पे अगर कि भाई कैसे कंप्लेन कर सकते हैं. आई गिव यू सम ऑफ माय एग्जांपल्स टू. तो there also you can go, and if you are cheated somewhere, travel tourism या कहीं पे, तो at least you should be aware. खाली मार्क्स के लिए हम नहीं पढ़े या मार्क्स तुम्हें दिलवाने के लिए मैं नहीं पढ़ा रही. इट्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट इन योर फ्यूचर. क्योंकि कई बार बच्चे बोलते एसएस क्या काम का, हम तो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं. लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी एसएस काम आएगा. तो विच पार्ट? यस, दिस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स, राइट. और जैसे हमारे एक बच्चे ने, नाउ ही इज ऑलरेडी 26 एंड ही केम फ्रॉम यूएस लास्ट वीक एंड ही हैड बीन ओवर हियर टू मीट अस. एंड दैट चाइल्ड every year he comes and he spends time, his a very precious time we spend together for about 2-3 hours together at my residence. So this child came last week also over here, and the same thing is said. Now he is doing job in US, but he had been over there since last, I think so, 7-8 years, and we are regularly in touch with it. But ये लड़के ने वही कहा था that he took science, of course, after 10th. Then he did his single degree over here. Then he went to US, and he said that he's more interested in one of the part of SS, and that is related to environmental protection, which is connected to SS, at the same time connected to science. Yes, of course, environment related. So he's more interested into learning more detail into that particular SS section. तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि मैंने लिया है साइंस, लेकिन एसएस का ये जो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इट इज कनेक्टेड टू माय स्टडीज अ लॉट. एंड वन मोर थिंग वाज दैट यस, you can also use your SS somewhere when you start, if at all you start earning after 10 years. सब बच्चे कहीं ना कहीं तो कमाने बैठेंगे, तो जब पैसे गिनोगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है. और देयर आर लॉट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. एज अ कंज्यूमर यू मे बी चीटेड, या अगर तुम चीट करने की किसी को कोशिश करो एज अ बिजनेसमैन और इंजीनियर और डॉक्टर वॉट एवर, यू नो दैट व्हाट विल बी द रिएक्शंस ऑफ इट, और क्या पनिशमेंट होती है उसकी. तो बहुत सारी चीजें ऐसी है which SS provides message to you for your future life. And there is one more subject which is equally important, of course, I would say. चलो जो साइंस नहीं ले रहे हैं उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है. वहां पे मैथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ. तुम अगर साइंस नहीं ले रहे, ठीक है, तुम आर्ट्स में जा रहे हो जहाँ पे मैथ्स नहीं है, बट मैथ्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू समवेयर और द अदर. एटलीस्ट दो नॉट ऑन लार्ज स्केल, बट थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, सिंपल. बट येस, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग वन पार्ट. एक चैप्टर मुझे याद आ जाता है हर बार, एक 8th का वेरी मतलब ओल्ड कोर्स में था, सम 7-8 years बैक. आई शुड टीच दैट टू माय दैट टाइम चिल्ड्रन. अब तो एनसीईआरटी आ गया, ये गुजरात बोर्ड की बुक थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. समवॉट लाइक फादर, डियर फादर, यस. एंड वन मोर चैप्टर very interesting that was also related to a father, and a father being a very goody father, understanding the child and talking to him who is studying in some other state. And one chapter we did was a letter by a child to the father where the father is not ready to understand the child. तो एक जो बच्चा जो एक लेटर लिख रहा है अपने डैडी को, वो कहता है डैडी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ही इज इन फियर, ही इज ऑलवेज इन फियर ऑफ हिज फादर, because his father always wants that the child should get first rank, which I hate to force my children कि first rank लानी है, 90 अब तो लाना ही है, 97th. Even now itself in this previous 10th result, last year के बच्चों का जो रिजल्ट आया था,
कोविड में आया था वो, लेकिन उनके 10th की एग्जाम खत्म होते ही लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। तो दो चिल्ड्रन, वो भी फोन पे उनके पेरेंट्स कहते यार उसकी फ्रेंड से 1% कम आया। So what does this imply? And just see that the child is continuously put under pressure. He or she is under that competition level पे भाग रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं, but they are not enjoying. जब वो फोर्सिबली कहीं पे कुछ कोई एक प्रोफेशन पिकअप भी कर लेंगे, तो क्योंकि सब ले रहे हैं मैं ले रहा हूँ, या क्योंकि मम्मी कह रही है तो आई हैव टू, ओ आई हैव स्कोर्ड 97 सो आई हैव टू बी अ डॉक्टर. So खुद को नहीं पूछते what do they love, but they just fall in that pit of competition, in that dirty pit of competition with the children in their surrounding. Parents do the same thing. They enter that race कि उनका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची को तो ये करना ही है. And then what happens is the child is not happy, and that they'll realize at the age of maybe 30, 35, 40. जब तक कि ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके रहते हैं हम. I would always say, तो यहाँ पे ये जो I went very far off, sorry. So this child is telling the father, the sorry father, you always expect first rank from me, but this time just for 1 mark, I went on the second level, second rank. Reason, I said just for example, कि टीचर जो सिखाते हैं कहते हैं कि दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक एंड ऑल, लेकिन वही चीजें कोई एग्जाम्पल्स, कोई प्रैक्टिकलिटी थ्रू, जैसे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल मतलब कि रिलेटेड, चलो ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट, तो टीचर को अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो टीचर को नहीं पता रहता बिकॉज शी हैज बुकिश नॉलेज एंड शी इज नॉट एबल टू टीच मी. बट द मोमेंट आई गो एंड आस्क द गार्डनर ऑफ माई स्कूल, जो बाहर कुछ प्लांटिंग कर रहा है, पानी दे रहा है, खातर लगा रहा है, सॉइल एंड ऑल, तो व्हेन आई गो एंड आस्क हिम आई गेट द डिटेल आंसर ऑफ एवरीथिंग. सो इन द सेम वे एंड इवन माई टीचर वांट्स कि वो जो कहे वो ही सही है. अगर कोई कहे मुझे, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई राइट इन एसेस पीएम में एक लाइक फॉर पीएम कि इंदिरा गांधी इज अ करंट से पीएम ऑफ आवर कंट्री, तो तुम्हें लिखना ही होगा, तुम नरेंद्र मोदी जी नहीं लिख पाओगे. या इफ आई से एनीवन, लालू प्रसाद यादव इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो तुम्हें लिखना ही होगा बिकॉज आई से. तो वैसे उसकी टीचर करती थी. तो एक इन एंड ऑन, इन और ऑन, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, इन द टेबल. अब ये इन और ऑन में टीचर ने कहा इन, आई सेड ऑन. जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, इन और ऑन का. तो मुझे पता है कि मैं सही हूं, फिर भी टीचर के हिसाब से मैं रॉन्ग था, तो मेरा 1 मार्क चला गया ग्रामर में, एंड देयर आई केम ऑन द सेकंड लेवल, सेकंड रैंक. So I'm really sorry for that. Now this is what parents, they don't understand. And maybe I'm not talking about your parents, I'm in general world level पे हर country में यही चलता है, right? And yes, but I have seen many parents who of course they don't force their child. They know, उन्होंने इस तरह से बच्चों को support दिया है that once again, it could be any country. It could be US, UK, France, Germany, Australia, India. हर एक जगह पे पेरेंट्स और बच्चे तो सेम रहेंगे, मेंटालिटी सेम होगी. तो जैसे मम्मी उसी में वो लड़का ये भी कह रहा है कि मम्मी को अगर मैं पूछता हूँ कि भाई ये चीज ऐसे क्यों, तो वो नहीं बता पा रही बिकॉज शी डजंट हैव दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज. लेकिन वही चीज अगर दादी को पूछो, दादी बहुत आसानी से जवाब दे देती है बिकॉज Dadi is not that highly literate. She's semi-literate, but she has experience, more experience than the mother. It could be Nani or Dadi, any. फिर और एक जो चैप्टर था वहां पे, now is the father's problem. Father कह रहे हैं, what is the use of studying so much of, जैसे फोर्सिबली पापा ने दिलवाया था साइंस लो, बेचारे ने साइंस ले लिया, मैथ्स इतना किया, स्कूल के टाइम से मैथ्स करता है, पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस एंड दैट. अब ये पाइथागोरस थ्योरम बड़ा होके तो फिर उसने फाइनली तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर चालू किया जो बहुत अच्छा खासा चल रहा है. और वो जो फादर है वो आज भी यही सोच के कंफ्यूज है कि क्यों एक
दौड़ में मैं लग पड़ा था या मुझे फोर्स किया गया था टू टेक साइंस एंड बी द बेस्ट इन मैथ्स एंड फुल मार्क्स लाने हैं साइंस और मैथ्स में। वाई सो? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मुझे, जब मैं घी तेल बिस्किट बेचता हूँ या डिपार्टमेंट स्टोर में वहां कैश काउंटर पे बैठा हुआ हूँ, तो आई डोंट थिंक माई पाइथागोरस थ्योरम इज गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प टू मी इन माई लाइफ। आर यू गेटिंग इट? बट दैट डजंट मीन मैथ्स इज नॉट यूजफुल। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स मैथ्स के लाइफ में यूज होंगे, वैसे पूरा एसएस काम में नहीं आएगा, बट अ पार्ट ऑफ इट इज यूजफुल टू अस, लाइक civics. As a citizen of India, you should know many things. Like we'll be doing one more chapter 20, which is going to be super duper interesting with lots of your example, my example, your parents, my, I don't have my parents, of course, but चलो बात करेंगे। एंड तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोई सब्जेक्ट काम का नहीं है ऐसे मैं नहीं कहती, बट एक लिमिट है कहीं पे उसकी इंपॉर्टेंस की भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, चलो सबको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन दौड़ रहे हैं मैथ्स के पीछे। सबको इंग्लिश में बोलना है, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। सबको इंग्लिश ग्रामर चाहिए अच्छा बेस्ट, बट ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जस्ट टुडे आफ्टर लेक्चर काउंट कितने वीडियो सिर्फ ग्रामर के मैंने बना के दिए, ऑन ऑन अ पेपर साइड बाय साइड लिखते जाओ कि कितने मिनट्स का एक वीडियो था। आर यू गेटिंग इट? टोटल मुझे बताना फिर, राइट? तो उतने घंटे तो सिर्फ मैंने लेक्चर में बोला है, उसके पहले की तैयारी, राइट? और लेक्चर देने के बाद तुम तक पहुंचाना, अ लॉन्ग जर्नी। तो जस्ट काउंटिंग, एटलीस्ट खाली वीडियोस के मिनट्स काउंट करके मुझे, खाली ग्रामर के वीडियोस के मुझे बता देना, देन वी विल डिस्कस। एनी चाइल्ड कुड बी, it could be Harshvardhan, it could be roll number 60, that is Raj, it could be anyone, Neil Bhausar, yeah, Jeet, and it could be anyone, yeah, Dev, yeah, ये सारी लड़कियां जो बैठी हैं यहाँ पे, like roll number 89 and roll number 12 Dia and roll number 1, oh sorry, roll number 1 is Jugal Thakkar, roll number 2 Mahika Shipra, and roll number बहुत सारे हैं, now very sorry can't take the name of all my dear children. Yes, roll number 40 Danvi. तो you can also just count and tell me very speedily, नीचे घर पे आके बता देना, then we'll have some enjoyment in the new year. तो अब ये अगर 3-4 बार रिपीट करते रहोगे तब जाके कहीं पे आई वुड से 50-60% तुम्हारा ग्रामर ठीक होगा, फिर भी 40 to 50% बचेगा। उसके लिए यही सारे वीडियोस नेक्स्ट ईयर देख लेना, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो तुम यहाँ पे हो, इस इंस्टीट्यूट के मेंबर शायद रहोगे या नहीं रहोगे। किस तरह से? आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी कमिंग बैक इन 10th, is that I've not yet decided, but may start with 11th 12th only English online course. So तब ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे तुम्हें, राइट? सो लेट्स मूव अहेड, कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कहो कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, क्या जरूरी है, हमें जाने दो ना, अभी 2 मार्क चाहिए, वो तो यहाँ वहां कुछ लिख के हो जाएगा, एक बार रीड कर लेंगे। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर लाइफ लॉन्ग, एंड दिस चैप्टर पर्सनली आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी, बिकॉज आई वुड से कि कई चीजें इस चैप्टर से भी मुझे जानने मिली जब मैंने स्टार्ट किया था इस बुक को पढ़ाना। जैसे मैंने कहा कि 10-11 साल पहले भी यही बुक थी, बट अब बहुत ही लेटेस्ट मॉडिफाइड फॉर्म में उन्होंने डाली है हमारे सामने, तो जिसकी वजह से 2 years बैक, एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई वेंट टू ऋषिकेश, आई वाज एबल टू फाइट फॉर इट, फॉर माय राइट। लेकिन अगर ये हम तक है तो वैसे तुम्हारे पेरेंट्स तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, राइट? So who can file a complaint and where? Let's see. First, consumer himself, you or me, as a consumer in the market of the product or seller, or product or service. जब हम buy करते हैं, cheat होते हैं, we can go and file a complaint. So consumer is said, himself or herself. Second, central government, state government or UT government, वो भी तो complaint कर सकते हैं, of course. Then there is consumer society or company law or other prevailing laws. मतलब हमारी तरफ से consumer forum, हम डायरेक्टली ना भी जाए, लेकिन हम कंज्यूमर फोरम को कह सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप जाके हमारी ओर से लड़ो।
रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर मतलब मैं ना जाऊं लेकिन मेरी ओर से मेरे फैमिली का कोई मेंबर चला जाए. सो रिप्रेजेंटेटिव जो मुझे रिप्रेजेंट करे लेकिन मेरी फैमिली का होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑन द मैटर इन विच इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स. और पूरे उस एरिया के कंज्यूमर्स चीट हो रहे हैं तो लेकिन देयर इज नो वन हु विल गो एंड टेल देम अबाउट ऑल दिस थिंग. So on my behalf, my family member will go and represent. एंड या फिर सब कंज्यूमर्स की तरफ से कंज्यूमर फोरम जा सकता है, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट एरिया. एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर कौन होगा उनकी तरफ से? तो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर फोरम. Any member of the family of person who has purchased the product or service with his permission may file a case if there is shortage of material or service or may lodge, that is file a complaint against loss. कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कंज्यूमर चीट हो रहा है तो उसका फैमिली का कोई भी मेंबर जा सकता है केस करने. If the producer or trader neither finds solution or shows preparedness to find solution of true, correct and clear the complaint. अगर प्रोड्यूसर या ट्रेडर वो कभी कंपेंसेशन देने के लिए रेडी नहीं होते, कंप्लेन नहीं सुन रहे, कंप्लेन को क्लियर नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर भी नहीं हो रहे हैं कि चलो भाई सोल्यूशन फाइंड आउट करें, इन दैट केस कंज्यूमर और इस फैमिली मेंबर में फाइल अ केस इन द लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम. मतलब एनी लेवल पे जा सकते हैं. दे में कंप्लेन इन सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी, दैट इज साइंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, एंड कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर सोसाइटी, कलेक्टर ऑफिस, कहीं पे भी जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं विद प्रूफ. हाथ में प्रूफ होना चाहिए दैट आई एम चीटेड दिस वे. द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन इफ द आइटम और सर्विस इज फॉल्टी और डेफिशिएंट, मतलब पैसे के हिसाब से गलत दे दिया है या चीट किया है या फॉल्टी या फेक या डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब लो क्वालिटी as per the money paid or is not according to the agreement or prevalent law, existing law, या फिर according आज के लॉ के हिसाब से वो प्रोडक्ट या सर्विस गलत दे रहे हैं. This consumer may file a case against the low quality, that is deficiency in quality of type and purity of goods, less weight, etc. अब कंप्लेन कैसे फाइल करोगी? अब विक्टिम में फाइल अ कंप्लेन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज अपनी भाषा में कर लो. Either typed or handwritten or through email, any. If the victim goes to the court through lawyer, अगर lawyer को appoint करके जाएंगे, then he needs affidavit, some legal papers to be done. Name of applicant, address, contact number should be there in application. Write detailed description of complaint. तुम कैसे cheat हुए हो वो पूरी complaint लिखो. And give the reason for complaining clearly. Enclose मतलब attach, pin up, copy of supportive evidence, proof और document related to accusation. Accusation मतलब तुमने accuse किया है, तुमने इल्जाम लगाया. एक्यूजेशन मतलब इल्जाम, तो उसके डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इल्जाम के तुम्हें लगाने हैं कि भाई मेरा ये इल्जाम है सामने वाली पार्टी पे, उन्होंने मुझे इस तरह से चीट किया और ये रहे डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ. नीदर नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस. ओरिजिनल रिसीट या पेपर्स कभी मत देना. एविडेंस मतलब प्रूफ, तो ओरिजिनल हमारे पास रखना है, फोटोकॉपी देनी है, जेरॉक्स. एनक्लोज बिल मतलब अटैच या पिन अप द बिल, रिसीट ऑफ पेमेंट्स. इफ द पेमेंट हैज बीन डन बाय चेक, देन अटैच द काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ चेक. Enclose a copy of condition mentioned by seller, copy of advertisement, pamphlet, prospectus, जिसको देख के तुम ललचा के चले गए उस चीज को खरीदने, लेकिन देखा तो तुम चीट हुए. तो उस पैम्पलेट या प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट की कॉपी उसको अटैच कर लो अपने मेन एप्लीकेशन से. और कंडीशन जो मेंशन किए गए थे बाय सेलर वो भी अटैच कर लो. And complaint may be filed or lodged in any consumer court or forum by submitting or that is by paying appropriate, that is proper fees as per amount of compensation claim. ये सबने आगे कर लिया था, 3 tier लिखा था वहां पे कि 30,000 फीस होगी. अगर तुम सही निकले, एक्चुअली चीट हुए हो, तो केस कंप्लीट होने के बाद वो पैसे कंपनसेशन में मिल जाएंगे. लेकिन कंपनसेशन क्लेम अगर तुम क्लेम करते हो, अगर तुम केस फाइल करते हो, तो पहले तुम्हें अप्रोप्रिएट फीस तो पे करनी होगी, क्योंकि हर बार थोड़ी ना है कि कंज्यूमर ही सही होते हैं. शायद तुम चीट कर रहे हो और गलत एग्जाम लगा रहे हो, तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द कोर्ट केस. और कोर्ट में केस लड़ने के बाद फाइनल डिसीजन. कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेन और फाइल अ कंप्लेन विद इन 2 years ऑफ इमेजेस ऑफ रीजन ऑफ कंप्लेन. 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर देनी है जहां पे तुम चीट हुए हो. Any consumer may call on Gujarat State Helpline toll-free number 1800-233-0222 or national level helpline number 1800-114-000 for consumer-related complaint as well as for special information about law and guideline.
कंप्लेन करनी है तो भी ये नंबर, और कोई गाइडलाइन, कोई सॉल्यूशन, कुछ भी चाहिए, लॉ रिलेटेड गाइडलाइन, इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड गाइडलाइन, तो हम इस नंबर पे फोन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस चैप्टर एंड विथ मी very nicely, and thank you. Keep on revising it, and if any problem, do tell me. Thank you so much. Thank you.